morning, students. Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. So, we have read the chapter number 5 of English grammar, है ना? Article a, an और the. पढ़ चुका है ना हमने? और इसके एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो चुके हैं, है ना बच्चों? मैम Yes, ma'am. बोलिए नंदिनी। मैम वो जो ई वाला एक्सरसाइज है उसका 9 और 10 वाला मैं नहीं कर पाई थी, बता दीजिए। तो YouTube में जाकर देखिए ना बच्चों, बार बार ऐसा थोड़ी मैम रिपीट यूट्यूब करेंगे। पर वीडियो नहीं डली। नहीं डली? मैम मैंने देखा था, नहीं डली है। क्लास 5 की ग्रामर की वीडियो नहीं डली YouTube पर? अभय तो कह रहा है डली है। कहाँ मैंने खुद देखा है मैम, नहीं डली। मेरा खुद 6 और 7 वाला नहीं कंप्लीट था। यूट्यूब पे जाके मैंने देख के किया था। नंदिनी और सभी बच्चों लोग एक चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, कि आप लोग एक क्लास करते हो, दो क्लास करते हो, लेकिन टीचर्स आपके यहाँ पे एक दिन में 4 5 क्लासेस आपको अटेंड करा रहे हैं। तो आप बार आप लोगों को रिपीट कराते रहेंगे। हम एक बच्चे को बार रिपीट कराएंगे तो कितनी बार कराएंगे बताइए आप लोग के लिए तो आसान है, सिर्फ दो क्लासेस कर रहे हो। रिपीट कराएंगे तो फिर आगे कब बढ़ेंगे? आपके बुक में कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स है, 28 चैप्टर्स है। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि चीजें छूटे ना, और छूट जाए तो YouTube से देखकर, या थोड़ा बहुत खुद को भी तो आना चाहिए ना बच्चों। 6 वाला कहाँ अभय आपने कहाँ देखा था वीडियो? तो हमें भी दिखाई नहीं दे रहा 5 वाला। मैम प्राइवेट हो गई लग रहा है, लेकिन मैम मैंने किया था, देखा था उस पे से। परसों की बात है ना ये? यस मैम। यस मैम। कौन सी डेट थी? 29। यस मैम। मैम 6 वाले में दा है मैम, बी में के मैम क्रॉस है, 7th में मैम क्रॉस है और बी में दा है। आपने बताया वीडियो में देखा। कौन सा पूछ रही हो नंदिनी? मैम 9 और 10। 9 वाले में ए का क्रॉस है, बी का द है। यस मैम। और 10th में मैम ए का क्रॉस है और बी में दा है। हाँ ठीक है, यही है। 10 वाले में भी सेम। यस मैम। तो बच्चों अब आ जाइए चैप्टर नंबर 6 पर, द प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। तो सृष्टि यस मैम। रीड करो। चैप्टर नंबर 6, द प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। ओके मैम। A pronoun is a word that takes the place of a noun. Pronouns replace noun to avoid the repetitive use of noun. For example, Priya has gone to the market. Priya buys fruit and vegetables. Priya cooks delicious food. Second, Priya has gone to the market. She buys fruit and vegetables. She cooks delicious food. In the second sentence, the pronoun she has been used instead of repeating Priya each time.
Kinds of pronoun. Pronouns are classified according to the manner in which they are used. The main kind of pronouns are given below. Personal pronoun. Personal pronouns are used in place of persons, animal, thing, or places, etc. Personal pronoun can be divided into three categories. The person who speaks, the first person. The person who is spoken to, the second person. The person who is spoken about, the third person. A person pronoun may be singular or plural. Person, first person. Singular, I, me. Plural, we, us. Second person. Singular, you. Plural, you. Third person. He, him, she, her. Plural, they, them. Personal pronouns I, you, he, she, it, we, they are used in the subject position. Personal pronouns me, you, him, her, it, you, us, them are used in the object position. Subject pronouns. Look at the following two sentences. Ravi likes cricket. He plays every day. In the first sentence, the proper noun Ravi is the subject, and in the second sentence, the personal pronoun he is used as the subject. Read the following pairs of sentences that show personal pronoun used as subjects. 1. My name is Raj. I am good boy. Second, my father is a doctor. He goes to a hospital every day. Third, my sister is older than me. She is 12. Fourth, our pet dog is very smart. It likes to play with a ball. Fifth, John, you are always late. Sixth, Priya and I go to the school together. We are good friends. Seventh, Raj and Payal are my friends. They play with me. Object pronouns. Look at the following two sentences. Okay, Ravi सृष्टि. Okay, good. So प्रोनाउन क्या है बच्चों? जो नाउन की जगह पर, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। जैसे हाँ, जैसे हमने बॉय के लिए क्या यूज किया? देखिए ही और क्या क्या है यहाँ पर, देखकर बताओ। he, him, his, himself। हाँ, self. फिर She, her, ये hers, हमने her, बॉय के लिए यूज she, किया, her, गर्ल के it, लिए them, except their. हाँ, itself, they, them, their। और एनिमल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? इट, इटसेल्फ और itself। हाँ, फिर चीजों के लिए, ग्रुप के लिए they, लोगों के ग्रुप। themselves। यस, करेक्ट। तो ये हो गए आपके प्रोनाउन, हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। लड़का है तो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। लड़की है तो शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। और अगर एनिमल है या फिर कोई चीज है ना, एनिमल है या फिर कोई चीज है तो इट, इट्स और इटसेल्फ। समझ गए बच्चों? yes फिर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या, कौन कौन से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, सब लोग बताइए। personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun। हाँ, सो और बच्चों पर्सनल प्रोनाउन में देखिए कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे यू, ही, शी, इट। दिख रहा है पिक्चर में आपको? तो ये सारे हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। जैसे Yes. पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, animal, thing or place. Personal pronoun can be divided into three categories.
कौन कौन सी? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड third, पर्सन। है ना? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई मी और मी। हाँ, और सेकेंड पर्सन सेकंड पर्सन में यू हाँ, यू। सेकेंड थर्ड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, हिम, सी, हर, दे, देम। हाँ, और प्लूरल में क्या होगा? आई मी का क्या हो जाएगा? बी और अस हो जाएगा। हाँ, और बच्चों यू जो होता है वो अपने आप में प्लूरल भी है ना? तो यू को Yes, प्लूरल ma'am. करने की जरूरत नहीं है, यू अपने आप में प्लूरल भी है। और ही, शी और हर का क्या हो जाएगा प्लूरल प्रोनाउन? दे, देम। करेक्ट, करेक्ट। तो ये हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। सिंगुलर में देखो कैट, फॉक्स, और प्लूरल में देखो फॉक्सेस, गेम्स, है ना? ये सारे आपको देखो, ये एक्टिविटी के थ्रू आप लोग ऐसे सीख सकते हो, है ना? नाउन, जो नाउन और प्रोनाउन है उनके बारे में, ठीक है? इस तरह के एक्टिविटीज देखो आप लोग कर सकते हो क्रिएटिविटी के साथ। अगर आपको ग्रामर पर बेस्ड कुछ करना है तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हो। सबको दिख रहा है क्लियर सबके मोबाइल में? तो हमने अभी पर्सनल प्रोनाउन देखा, अब आ जाइए सेकंड प्रोनाउन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैम मैं पढ़ूं? पढ़िए बिल्कुल। When a word shows that the action of the subject reflects upon itself, this word is called a reflexive pronoun. For example, first, I rewarded myself by this work. Second, the snake bit itself. Third, boy, you can hurt yourself. Fourth, they should work hard and reward themselves. In हाँ, these sentences, the reflexive pronoun reflects back to the subject. तो मैम आगे बच्चों हाँ पढ़िए। Then, third, emphatic pronoun. When a reflexive pronoun is placed immediately after अच्छा a देखो, पहले noun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होगा? जैसे देखो यहाँ पर लिखा है अब मिरर शोज अ रिफ्लेक्शन, है ना? मिरर आपकी क्या दिखाता है? रिफ्लेक्शन दिखाता है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर Yes, मिरर ma'am. जो है वो रिफ्लेक्शन दिखाता है। तो जब रिफ्लेक्शन जब दिखाएगा तो क्या दिखता है हमको उसमें? उसमें हमें अपना इमेज दिखता है ना? रिफ्लेक्ट करता है तो हम उसमें अपनी ही फोटो हमको दिखाई देती है। वैसे ही बच्चों होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो Yes, ma'am. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है बच्चों कि जैसे हर है तो क्या हो जाएगा उसका? हर का Herself. फिर हिम है तो हिमसेल्फ, Himself. माई सेल्फ, योर सेल्फ और आर Yourself. समझ में आ रही है ये चीजें आपको? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है ना? हर का हर सेल्फ हो गया, हिम का। अब जैसे किसी ने कोई काम किया है ना, उसने अपना खाना खुद से बनाया। किसने अपना खाना खुद से बनाया? उसने। तो शी मेड हर फूड बाय हर सेल्फ, है ना? यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं? काम भी उसने ही किया और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो इसका मतलब होता है बच्चों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से एक बार दिखाइए? Himself,
Herself, हाँ, सो बच्चों ये पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को समझ में आ रहा है इजीली जो हम बताना चाह रहे हैं आपको? यस मैम। चल अब देखिए कुछ और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें देखो क्या है, इस पिक्चर में हमें क्या पता चल रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है? Claire is looking at Aisha. She is looking at her. है ना? She is looking at her. When the subject and the object are different people, don't use reflexive pronouns. ठीक है? जो अब मिरर में किसका रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है? खुद का। तभी तो हम उसको तभी तो हम लोग उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर शीशे में हमको कोई और दिख रहा है तो वो हमारा रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ देखो लिखा है क्लेयर इज लुकिंग एट आयशा, तो आयशा को कौन देख रहा है? क्लेयर देख रही है। लेकिन अगर आयशा खुद को देखेगी तब वो क्या हो जाएगा? तब वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अभी क्लेयर देख रही है। अब देखो जैसे नीचे वाले में देखो क्या लिखा है, क्लेयर इज लुकिंग एट क्लेयर। क्लेयर किसको देख रही है? क्लेयर को ही देख रही है। दिख रहा है ना ये फर्स्ट वाला? यस मैम। अब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा कैसे कि शी इज लुकिंग एट हरसेल्फ। वो अपने ही आप को देख रही है। शी इज लुकिंग एट हरसेल्फ। आ रहा बच्चों समझ में? यस मैम। चलो नंदिनी अब दूसरा प्रोनाउन कौन सा है? Emphatic pronoun. हाँ, When a reflexive pronoun is placed immediately after a noun or pronoun to lay emphasis on a particular point, it is an emphatic pronoun. If an emphatic pronoun is removed from a sentence, it will not affect the meaning. Example: first, I myself went away. Second, she herself wrote this essay. Third, we ourselves climbed up the hill. Fourth, they themselves enjoyed. Fifth, I met the minister myself. A reflexive or emphatic pronoun is formed by adding a suffix self to the singular and service to the plural. Singular. अब देखो बच्चों कहाँ तक हो गया? रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक पूरा हो गया? यस मैम। चलो अब आप देखिए समझ लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट क्या है जो कि क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। किसमें रिफर करते हैं? रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर दोबारा से ये लोग रिफर करते हैं। they are used to rename the subject। इनको सब्जेक्ट को रीनेम मतलब सब्जेक्ट के बारे में दोबारा से फिर से रीनेम करने के लिए इनको यूज किया जाता है। किसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। अब है ये वाला बॉक्स, एक बार पढ़ के दिखाइए, सबको बताइए क्या लिखा है इसमें। अब है मैम मैं पढ़ूं? बेटा बार बार एक ही लोग नहीं पढ़ेंगे, सबको पढ़ने का मौका दीजिए। जिसका हम नाम लेंगे बच्चों वही सिर्फ पढ़ेंगे। अच्छा अब है तो रिमूव ही हो गया है, बता नहीं रहे हो आप लोग? यस मैम।
pronouns are pronouns that refer back to the subject of the sentences or clause. They are used to rename the subject of action, verbs, and function as different types of objects. If the reflexive pronoun is taken out of the sentence, it won't make a sense. अगर reflexive pronoun को sentence से निकाल दोगे तो वो कोई भी sense नहीं बनाएगा. अब जैसे देखो reflexive pronoun था वैसे ही emphatic pronoun के भी words हैं. ये सारे वर्ड आपको reflexive pronoun में दिख रहे थे? यस मैम। हाँ, तो यही सेम Yes, वर्ड्स ma'am. आपको इसमें भी दिखेंगे. जैसे मैरी मेड दिस ड्रेस, क्या होगा इसका आंसर बताओ? मैरी मेड दिस ड्रेस मैरी मेड दिस ड्रेस फॉर herself, फॉर सेल्फ। herself. और Herself. we cooked food for, हर सेल्फ। बेटा we के साथ क्या लगेगा? Ourselves. मैम हर सेल्फ। Yes, Ourselves. ourselves. We Ourselves. cooked food for ourselves. प्लूरल के साथ ourselves लगेगा. फिर ये वाला बताओ. The woman accidentally cut. क्या होगा यहाँ पे? Herself. Herself. Correct. फिर Alice, did you take the photo of? Yourself. Yourself. You है तो yourself होगा, है ना? यस बच्चों इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? Yes, यस ma'am. यस मैम। तो अब इसके साथ इसके बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा? मैम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो अब सृष्टि और नंदिनी के अलावा कौन पढ़ेगा बताओ? मैम अभी आपने imperative pronoun नहीं. क्या बोल रही हो सृष्टि? Yes, ma'am. क्या कह रही हो? वो अभी आपने imperative pronouns नहीं पढ़ाया है. पढ़ाया तो emphatic pronoun. यस मैम मैंने रीड भी किया है। ये emphatic pronoun ही है. emphatic pronoun में reflexive pronoun के जो words है वो दिखते हैं. देखो reflexive pronoun is placed immediately after a noun or pronoun to lay emphasis on a particular point. It is emphatic pronoun. देखो जो reflexive pronoun है बच्चों वो तुरंत अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद लगा दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि किसी पर जोर देना, समझ रहे हो? जोर देना कि उसी ने किया है. अभी तक रिफ्लेक्सिव में था कि वर्ड शोज दैट एक्शन और सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ. शब्दों पे वो रिफ्लेक्ट करता था कि मेरा, मैं हूँ. लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है कि उसका तुमने किया. जैसे पहले हमने बताया था क्लेयर किसको देख रही है? क्लेयर लूसी को देख रही है. तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं था. लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन यही है कि क्लेयर लूसी को देख रही है. मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया. समझ रहे हो? एम्फेसाइज करना. यस मैम। Yes, हाँ. ma'am. मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें नाउन और प्रोनाउन के जस्ट पहले एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए कि ये काम इसी नाउन ने किया है. वो नाउन कोई भी हो सकता है, तो उसी को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन. और उसमें भी हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ यही वर्ड्स लगते हैं. बताइए नव्यांश. मैम. हाँ आकांक्षा बोलिए. मैम मैं पढ़ूं? पढ़ लोगी? Yes, ma'am. पढ़ लोगी तो पढ़िए.
Capitals proper noun are proper noun used to Demonstrative है. demonstrative proper noun Demonstrative बेटा, demonstrative. demonstratives proper noun are proper noun used to point out the person or things we are taking aboard. These proper nouns are used to point out things which are replaced to act a dressing or the work is and at these and those and are replacement proper noun. First, this shows is more comfortable than that one. Second, these are speak, but also those are got. Remember, we use his and these of think near to use. Second, we use that and those or things further away. Use his and that you singular. Use this and those are plural. Different between ठीक है. ठीक है. So सृष्टि, Yes, ma'am. अभी तक आपको emphatic pronoun समझ में नहीं आया ठीक से? मैम आ गया. क्या होता है बताइए, क्या समझ में आया है? मैम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन ही ना. emphatic pronoun बोल रहे हैं. emphatic pronoun वो अपने ही चीज पर जोर देता है कि हाँ ये इसी ने किया है उसी ने किया है. वो होता है emphatic pronouns. देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने आपको बताया था कि इसमें रिफ्लेक्शन की बात होती है ना? रिफ्लेक्शन की बात होती है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर हम कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं तो जैसे कि शीशा देखना है ना, तो शीशा देखते हैं तो क्या होता है, मिरर में हमारा ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कि नहीं? बताइए. Yes, ma'am. जब हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है तो वो हम ही खुद दिखाई देते हैं ना. रिफ्लेक्शन में मिरर में हम खुद दिखाई देते हैं. तो क्या है कि आई मेक माई फूड बाय माई सेल्फ, है ना. मैंने खुद के लिए खाना बनाया. द स्नेक बाइट इटसेल्फ, स्नेक ने खुद को बाइट कर लिया. स्नेक क्या है, एनिमल है. हमने आपको बताया एनिमल के लिए इट का यूज होता है ना. तो स्नेक के लिए क्या होगा, इट के साथ इट सेल्फ, है ना. हाँ, अब ये समझ में आ गया रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या है? Yes, ma'am. अब आ जाइए आप एम्फेटिक पर. एम्फेटिक का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेस देना या जोर देना. अभी तक तो हमने बता दिया था बस कि उसने खुद को काटा या उसने खुद के लिए खाना बनाया. लेकिन रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन में हम क्या करते हैं? व्हेन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड इमीडिएटली. इमीडिएटली मतलब तुरंत. इससे पहले नाउन और प्रोनाउन के बाद, है ना. नाउन और प्रोनाउन के बाद तुरंत अगर
रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लगा दिया जाए। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन मतलब हर सेल्फ, इटसेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, ये वाले है ना, इसको लगा दिया जाए तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जोर देने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जोर देने के लिए लगा दिया जाए। इट्स एन एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस, इट विल नॉट अफेक्ट द मीनिंग। लेकिन अगर इम्फेटिक प्रोनाउन को हटा देंगे हम लोग, इसको सेंटेंस से हटा देंगे, तो भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं खत्म होगा। मतलब इसके बिना ऐसा नहीं कि काम नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन के पास इम्पेटिक प्रोनाउन लगा देते हैं। समझ गए? जैसे I myself went away. I myself went away, दिख रहा है? तो I myself went away, अगर इसको हम हटा देंगे, लिख देंगे I went away, तो क्या मीनिंग खत्म हो गई? मैं गया, है ना, मैं गया, इसका हिंदी क्या होगा, मैं गया। वेंट मतलब गो का सेकंड फॉर्म होता है गया। तो यहाँ पे हमने एम्फसाइज तुरंत कर दिया, अरे मैं तो खुद से गया, मैं तो खुद ही से गया, कोई मुझे कहकर नहीं गया, मैं जोर दे रही हूँ कि मैं खुद से गया, है ना। तो ये एम्फसाइज करना है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है ना, लेकिन बिना इसके भी काम चल गया। समझ रही हो सृष्टि? सब बच्चों को समझ में आ रहा है एम्फसाइज करना क्या है? यस मैम, यस मैम। बच्चों नाउन जो होते हैं, ग्रामर होती है इंग्लिश में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इसकी जो डिटेल्स है वो अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। हमेशा आप ग्रामर पढ़ोगे तो हमेशा ग्रामर एज इट इज रहने वाली है, इसके रूल्स, पंक्चुएशन सब सेम रहने वाले हैं। ओके, सो यू हैव टू लर्न इट केयरफुली। ओके ओके मैम। हाँ, तो ये जो रूल्स हैं ये आप अभी पढ़ो, ग्रेजुएशन में पढ़ो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ो, कभी भी पढ़ोगे तो ग्रामर सेम रहने वाला है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ओके ओके मैम। अब ध्यान से देखो, शी herself wrote this essay, है ना, she herself wrote this essay। अब ये herself हमने तुरंत लगा दिया कि हम जोर दे रहे, बता, अरे इसने तो खुद बनाया है। कभी कभी किसी के पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों की तारीफ करते हैं दूसरे रिलेटिव्स के सामने कि मेरा बच्चा तो खुद से खाना खा लेता है, मेरा बच्चा तो खुद से चाय बना लेता है ना। तो हम लोग, वो पेरेंट्स क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं अपने बच्चे को बड़ा दिखाने के लिए, उसकी क्वालिटीज दिखाने के लिए, उसके एडजेक्टिव्स बताते हैं कि ये तो खुद से कर लेता है। लेकिन अगर वो कहेंगे कि शी रोट दिस एसे, तो क्या है कि इसने अपना ऐसे लिखा, बस इसने अपना ऐसे लिखा। लेकिन अगर हमको एम्फेटिक प्रोनाउन लगाना है तो हम क्या बोल देंगे, हरसेल्फ, खुद से लिखी है ये, किसी ने हेल्प नहीं की है इसकी। समझ गए? यस मैम। चलो, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू दी फर्दर नाउन और प्रोनाउंस, ठीक है? यस मैम। चलो, जितना बताया है, लेकिन ये भूलना नहीं है, बार बार हम नहीं बताएंगे। और कोई ये नहीं कहेगा कि मैम एक बार फिर से बताइए, ये करिए वो करिए। जो चीजें हैं ध्यान से सीखिए, नहीं समझ में आ रहा है पूछिए क्लास में, ठीक है? फिर आगे और भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एज आई टोल्ड यू कि आपके सिलेबस में 28 चैप्टर्स, ठीक है? तो सारे टॉपिक्स हमको कवर करने। बाय मैम। अच्छा बाय, तुरंत बाय मतलब जाओ, अभी हमने तो बाय नहीं बोला। आकांक्षा मैम, हाँ बोलो। नंदिनी मैम पेपर 6 से है ना? हाँ हाँ हाँ। आकांक्षा पेपर में क्या क्या है? क्या चाहती हो आकांक्षा, जाए हम? नो मैम। तो आपने तो तुरंत बाय बोल दिया। बेटा पेपर में 1 to 5 जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब आएगा, ठीक है? यस मैम। हाँ, कभी भी ऐसा कुछ मत छोड़ा करो कि बताया जाए तब हम वो चीज पढ़ेंगे। जो हमने क्लास में पढ़ाया आपको 100% पूरा एक एक लाइन बताइए, हर एक स्टोरी की, हर एक ग्रामर के चैप्टर की, और एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कराएंगे। उससे अलग कुछ आने ही नहीं वाला है। तो जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं अभी, उसको आप 5 चैप्टर्स को लर्न करेंगे अच्छे से। कहीं से कुछ भी पूछेगा, यू हैव टू डू दिस, ओके?
Yes, ma'am. मैम कॉपी पे कवर चढ़ाना है। बिल्कुल, सबकी कॉपी पे अच्छे से कवर चढ़ा हुआ होना चाहिए, एकदम अच्छे से कॉपी मेंटेन होनी चाहिए। और मैम ओरल होगा कि रिटर्न? रिटर्न होगा। यस मैम। मैम क्लास चलो। ज्वाइन करना। बेटा आपको कॉपी जैसे पहले होता था ना, कॉपी ले जाते थे वैसे ही टाइप का। यस मैम। चलो, तो थैंक यू ऑल बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाय Bye. मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye.